And welcome everyone. Guys, can you hear me properly? आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? Great. I can see राजीव जी. राजीव जी आप एक बार अनम्यूट करके बोल भी दीजिए so I can double check कि आवाज ठीक से आ रही है, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है. Good afternoon everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. So great to see all of you guys. Great. तो guys सिर्फ राजीव जी और विवेक ही दिख रहे हैं. ओके, मानस भी दिख रहे हैं. What about the rest? बाकी लोग कहाँ हैं? राजीव जी तो अपने फ्लावर्स भी दिखा रहे हैं. Good, nice flowers. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ravi Sadbir की जोड़ी. Yes, sir. I can see Mukesh. Great. राजीव जी लगता है हिल स्टेशन पे है. ओ हाँ, हिल स्टेशन पर ही रहते हैं. भीमताल हूँ मैं. Wow. So you are already fortunate enough to stay there permanently, right? That's right. God has been very kind. Amazing. Thank Beautiful you. place. So guys, आप में से कोई ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं आज टेक फ्राइडे में? Type me in the chat. You can type me in the chat or raise your hand. अच्छा, नकुल गुरदीप. Okay, great. So welcome guys. So Tech Friday basically is an initiative for me to connect with you and connect you to the latest possible technologies. तो मैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो मैं बताता रहता हूँ. और कई सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कई सारी चीज़ें पुरानी होती हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग टिप्स होती हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन. To begin with, Abhishek, is there anything that you would like to share with us today? Sir, एक छोटा सा tip है which I think a lot of people struggle with. That is, if you want on Windows to start recording your screen, it is Windows Alt and the R key. आप लोग सब एक बार ट्राई करके देखिए. Windows की Alt और R जब आप प्रेस करेंगे आपका Windows का जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होना चालू हो जाता है along with sound. तो एक बार दोबारा से बता देते हैं. Windows Alt और R and R. Windows Alt की and R की से आपका स्क्रीन जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा. So Vivek has confirmed that it is working. Windows Alt and R is the shortcut key. And also, can you tell me the sniping tool? क्योंकि Sir, it is Windows Shift and S. So Windows Shift and S to take a print screen. Screen का एक part ले सकते हैं, right? Yes, sir. Selected part of the screen you can take a snapshot. Yes, sir. और iPad पे रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं, iPad पे नहीं होगा राजीव जी. It's too much work for iPad, I think. iPad पे तो कोई एप्लीकेशन डालना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्डर का, तो उससे हो पाएगा. You will have to download some application from iPad that will record your screen. तो आप वो ना ऐप मार्केट में सर्च कर लीजिए. Thank you. And for people who are using Mac, तो Mac पे बड़ा सिंपल है. Mac पे जो है, anyone using Mac है? तो मुकेश मेरा चाह रहे हैं रिपीट कर दें. तो it is okay. अभिषेक एक बार ना टाइप भी कर दो इसको. So the key for टाइप पर रिपीट भी कर दो. तो for video recording on Windows, the key is Windows plus Alt key plus R key, sir. Video recording on Windows. Yeah, and for taking selected screenshot, selected area screenshot, उसके लिए क्या है? I'm typing it. It's Windows plus Shift plus R. Sorry, S. So this is for selected area screenshot. Okay. Yes, sir. Guys, आप लोगों ने ट्राई करके देखा? Is it working? करके देखिए, करके देख लेंगे तो अभी हाथों हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी.
Okay, great. So for people on Mac, it is for selected area, we normally use Command Shift 3. तो Command Shift 3 से ना selected area का हम वो ले पाते हैं, और Command Shift 5 से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. Okay, Command Shift 3 and Command Shift 5. So 3 is for selected area. So you can take a snapshot of selected area, and Command Shift 5 से आप पूरा वो ले सकते हैं. Great. So let us begin, and also before I begin, let me also. So I'll be showing you another amazing tool. तो मैं आपको ना एक और amazing tool भी आज share करूँगा. But before I go there, I would like to show you one thing कि जिस link से आप लोग आए हैं, so you guys must have used this link to enter. This is itbx.in/tf, and when you click on this link, तो ये हमारा एक इंटरैक्टिव लिंक ट्री ओपन हो जाता है. तो ये देखेंगे आप, ये इंटरैक्टिव लिंक ट्री है, और इसके अंदर में आप एक तो नेक्स्ट वर्कशॉप का टाइम आ जाएगा इसमें कल, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, इसका टाइम भी ब्लॉक कर सकते हैं. कैलेंडर में ना क्लिक करेंगे तो आपके कैलेंडर में ये आपको इवेंट क्रिएट कर देगा, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं इसको. ओके, तो दिस हेल्प्स यू क्रिएट अ कैलेंडर इवेंट, एंड ऑल्सो यू कैन सी द पास्ट एपिसोड्स राइट हियर. तो आपके जितने भी पास्ट एपिसोड्स हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप पास्ट एपिसोड देख पाएंगे. एंड दिस इज द इंटायर चैनल, और इसमें बहुत सारी चीजें हमने करी हैं. तो वेरी क्विकली, लास्ट टाइम हमने क्या करा था वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट नो वन हैज मिस्ड आउट ऑन इट. तो लास्ट टाइम वी डिड दिस रॉकफेलर हैबिट्स. तो ये बहुत ही एक अमेजिंग एक्सरसाइज हम लोगों ने करी ऑन जॉन डी रॉकफेलर. तो जॉन डी रॉकफेलर की 10 क्या हैबिट्स थी जो कि आपके अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करा सकती हैं. ठीक है, तो उसकी पूरी एक एक्सरसाइज मैंने शेयर करी थी. तो दिस इंटायर एक्सरसाइज इज राइट हियर. इसमें लिंक्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, तो इसको जरूर देखिएगा अगर आप लोगों ने मिस किया है. बड़ी सिंपल हैबिट्स हैं, हम लोग खुद अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमें रोज इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. ओके, तो ये रॉकफेलर जो है वो अपनी टाइम में, और इवन अभी तक वो कहते हैं इज द रिचेस्ट अमेरिकन. तो अभी तक उसको इवन इलॉन मस्क और जो जेफ बीजोस वगैरह भी बीट नहीं कर पाए हैं. ही वाज दैट रिच कि उसके लिए रेगुलेशन निकालनी पड़ी थी इसे कंट्रोल करने के लिए कि ये सारी कंपनियों को खा जाएगा. ठीक है ना. और इसको जो है, इसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझा वर्न हार्निश ने, हु इज द फाउंडर ऑफ ईओ. और वर्न हार्निश ने इसको एक टेक्नोलॉजी का रूप दिया. तो ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हैं. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए. आई एम श्योर इट विल have a very deep impact like it has on my business. And okay, let me Madhu ne diya hai. Let me share the link with you guys for this particular video in the chat. तो इसको जरूर करिएगा, इसको मिस ना करें. Just want to make sure कि ये चीज को जो है आप, just give me a second, I'll type it in the chat. Did any one of you fill the Rockefeller habits? किसी ने भरा, किसी ने फॉलो करना शुरू किया इसको? Just unmute and let us know. फ्राइडे को जब आपने कराया था तभी भरा था. ओके, तो उसका ना ईमेल आपको आया होगा राजीव जी, और उस ईमेल के अंदर जो पॉइंट्स है ना उसको रिव्यू करते रहें रेगुलरली. जी, मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी जिससे कि वो वीकली बेसिस पे आपके पास आती रहेगी. ठीक है, तो उसको जरूर करें. बट यू नीड टू फॉलो इट, एंड इट कैन बी लाइफ चेंजिंग. इसकी लाखों रुपए की ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं वर्न हार्निश. कंटेंट तो वही होता है जो मैंने आपको सिखाया है, और फॉलो करे बगैर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. राइट, तो आप अभी भी उसके पूरे मजे ले सकते हो, और पूरा बिजनेस में एक अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको. तो आज हम एक और टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जो टेक्नोलॉजी मैं यूज करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा उसका नाम है मीरो. ओके,
तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें अटेंड करता हूँ, बहुत सारे मेरे गोल्स होते हैं, बहुत सारी जगह मैं वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ, और ये सारा का सारा मैंने एक ही जगह रखा हुआ है। ओके, जो भी मेरी प्लानिंग है, तो ना अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई चीज़ कहीं रख दी। अब जैसे मैं किसी वर्कशॉप अटेंड किया, तो मैंने ये देखिए उस वर्कशॉप के नोट्स यहीं रखे हैं, मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली थी और मेरे सारे नोट्स यहीं हैं। तो मुझे ना 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ऐसे ही मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरा इसका चार्ट कैसा होना चाहिए, देखिए मेरी क्या-क्या ऑर्गेनाइज़ेशन में मैं किस तरह से काम करूँगा। आप देख रहे हैं इसका मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि मैं क्या-क्या अपनी ट्रेनिंग में मैंने क्या चीज़ नहीं सीखी, लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या मैंने लर्न किया, क्या नए आइडियाज़ हैं। तो ये COIT बॉक्स से रिलेटेड यही हैं। फिर ये मेरे मास्टर गोल्स क्या हैं, मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ बिज़नेस में, फाइनेंस में, हेल्थ में, फैमिली में, देख रहे हैं आप? तो ये सब मैंने यहीं पे नोट किया हुआ है। इसको मैं मतलब डीप में जाके मैं और ऐसे देख सकता हूँ। फिर मेरी अलग-अलग टीम हेड्स हैं, उनकी क्या KRA, KPI, तो मतलब आप देखेंगे कि मेरी जो भी प्लानिंग है, ओके, कंपनी का मेरी क्या स्वॉट एनालिसिस है, तो मेरी कंपनी का क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो ये देख रहे हैं, मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, थिंकिंग होती है, उसको कहाँ रखें? अलग-अलग जगह रखने में क्या होता है? भई आपने कहीं नोट कर लिया, कोई चीज़ कहीं नोट कर ली, तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट विल गेट लॉस्ट, राइट? तो व्हाट आई हैव डन हियर इज़ कि आई हैव गॉट ऑल ऑफ दैट इन वन पेज, इन वन सिंगल प्लेस, इट इज़ एंडलेस। मतलब ये देखेंगे ना आप, ये देखिए एवरीथिंग इज़ इन वन प्लेस। कोई मुझे वीडियो अच्छा लगा, ये देख रहे हैं आप? तो मुझे वीडियो अच्छा लगा, वो भी मैं यहीं से प्ले कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं आप? मैं सारा कुछ मतलब यहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई आर्टिकल अच्छा लगा, मैंने उसको वेब पेज को ही कैप्चर कर लिया। ये इवन पूरा वेब पेज कैप्चर कर लेता है। देख रहे हैं आप? ये इवान माइज़नर हैं, तो इनका मुझे एक मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, तो मैंने उसको रख What दिया। are some of the other lessons you've learned that you could say, okay, तो दिस इज इवान माइज़नर विद रिचर्ड कैनफील्ड, जैक कैनफील्ड। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, तो एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। मेरी क्या प्लानिंग है, मेरे क्या नोट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, सब कुछ मैंने देखिए, ये देखिए। तो किस जगह पे मुझे क्या करना है, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। ओके, और ये देखें कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एक्सेल का डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट हो, PPT भी हो, तो वो दिखेगी भी, खुलेगी भी, आप उसके पेजेस भी टर्न कर सकते हो। देख रहे हैं आप? मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी कोई लिंक डाल के कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, वो खुल भी यहीं पे रहा है। मतलब अगर वो एक प्रेजेंटेशन ही है, जैसे मेरी टीम्स ने मुझे कोई प्रेजेंटेशन दिया, वो प्रेजेंटेशन भी यहीं डला हुआ है, और मैं उसको यहीं पे मैं जो है जाके देख सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप? तो एवरीथिंग आई कैन सी हेयर ओनली। एंड नॉट ओनली दैट, इसके अंदर में बहुत सारे और अमेजिंग टूल्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर में, ये देखिए यहाँ पे ना, ये हम टेम्पलेट्स हैं, तो अलग अलग प्रकार की टेम्पलेट्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई मीटिंग हो रही है, तो ये स्मार्ट मीटिंग टेम्पलेट है, इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्ट्रेट अवे यूज भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी टेम्पलेट है, जैसे कि इसमें कितने तरह की टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आइडिएशन, ओके, ब्रेन राइटिंग, रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्कैम्पर, ठीक है, PI प्लानिंग, कैनवैन, ठीक है, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, कंसेप्ट मैप, ये देखिए प्रोडक्ट रोड मैप। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अभी आप कितना पीछे हैं कि अभी आपको ये सब फंडे ही नहीं पता कि ट्रिपल डायमंड क्या होता है, ठीक है ना, निको निको टीम कैलेंडर क्या होता है। और आपको ना ये, अरे हर एक टॉपिक पे एजाइल वर्कफ्लो चाहिए, तो एजाइल वर्कफ्लोज मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, एजाइल प्रोडक्ट रोड मैप। अब जैसे क्लिक किया यूज पे, तो वो जो, ये देखिए, ये आ गया, ये देखिए, ये पूरा एजाइल वर्कफ्लो बन के आ गया। अब ये पूरी टेम्पलेट तैयार है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
प्रोवाइडेड कि आप पहले सीख लें कि होता क्या है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम खुद ही कंसेप्ट सिखाया था कौन सा बिजनेस मॉडल कैनवस का, तो वो भी इसके अंदर है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है तो इसका मतलब लॉन्ग वे टू गो, राइट। बट लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे जैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग, रिसर्च एंड डिजाइन, ये देख रहे हैं आप, स्टेक होल्डर रेसी मैप, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विजुअल गाइड। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हो रहा है तो इसका मतलब कि रिसर्च करने का टाइम है। ठीक है, माउंटेन ऑफ टुमारो देख रहे हैं आप, प्रोजेक्ट कैनवस। तो यू सी सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये देखिए आप, so many interesting templates, so many interesting things। और ये समझ नहीं है तो YouTube पे जाइए और डालिए, आई एम श्योर इसका कुछ ना कुछ तो डिटेल आ ही जाएगा। तो ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है, इसका और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं इसको बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूँ। तो एक तो ऑफ कोर्स ये मेरी सारी प्लानिंग आ गई, ये देख रहे हैं मेरी सब तरह की प्लानिंग, मेरी सब तरह की इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स जो भी मुझे लगते हैं वो सब मैं यहाँ डाल देता हूँ। और मैं कुछ इसके इंटरेस्टिंग यूज बताता हूँ आपको। जैसे कि एक सेकंड देखते हैं, वापस आते हैं मीरो में। अभी रिसेंटली हम लोग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो हमें दिक्कत आ रही थी कि भी वो बंदे को कैसे बताएं। तो ये मेरी नई वेबसाइट बन रही है, तो उस वेबसाइट के अंदर में हमने क्या करा, हमने पूरी वेबसाइट ही इंपोर्ट कर ली यहाँ पे। तो इसके अंदर में ना एक टूल है, तो समवन वांट टू गिव मी देयर वेबसाइट, मुझे कोई अपनी वेबसाइट बताए चैट में, मैं उसकी वेबसाइट कैप्चर करके दिखाता हूँ यहाँ। एनीवन? Okay, I've got the first one is nissim.in. I'll just type that in. ये देखिए पूरी ये वेबसाइट का जो भी पेज इन्होंने दिया है वो पेज अभी यहाँ आ जाएगा, तो आने देते हैं इसको, कैप्चर कर रहा है, ये देखिए आ गया। देख रहे हैं गाइस? ठीक है, अब मैं अपने डेवलपर को बता सकता हूँ, मेरे को कोई डेवलपर है मैं उसे बोल सकता हूँ यहीं पे देखिए इसके अंदर में नोट्स हैं, चेंज दिस इमेज। ठीक है ना, आप छोटा बड़ा मतलब सब कुछ कर सकते हैं, कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। मैंने नोट बना दिया, ठीक है, और फिर अब मैं उसे यहाँ पे मेरे को कुछ लिखना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ओके, आई कैन ड्रॉ ऑल्सो, आई कैन पुट अ शेप ऑल्सो, एंड आई कैन सिंपली, ये देखिए ड्रॉइंग बना दी मैंने, नीड टू रिड्यूस स्पेस हेयर। ओके, और यहाँ पर आप कोई पेन यूज करना चाहते हैं, यू वांट टू यूज अ पेन, तो आप ये जैसे कहते हैं कि नहीं ये टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, आप ये टेक्स्ट काट सकते हैं। ओके, आप कह सकते हैं कि ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नोट लगा सकते हैं। ओके, दिस इज टू बी चेंज्ड। ओके, फिर इसी तरह से इसके अंदर में आपको कोई कमेंट डालना है तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं। ओके, प्लीज पुट अपग्रेडेड मॉडल, तो ये देखिए यहाँ पे कमेंट आ गया, क्लिक करते ही कोई भी कमेंट देख सकता है, और इसको फिर आप शेयर कर सकते हैं अपनी टीम से। ये देख रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। तो यू कैन कॉपी द बोर्ड लिंक एंड यू कैन गिव इट टू एनीवन एंड देन दे कैन सी द सेम थिंग। तो ये हमने बड़ा अच्छे से यूज किया अपने डेवलपर को कोलैबोरेशन के लिए। अब डेवलपर भी हमारा देख सकता है कि अच्छा कहाँ पे हमने क्या लिखा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ना क्या टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है, इधर क्या टेक्स्ट आना चाहिए। तो ये देखिए हमने बड़े इफेक्टिवली इसे बता पाए। और ये सेम चीज जो है, ये देखिए सेम चीज जो है, आप इवन कोई ग्राफिक ड्राइंग है, आपका कोई लेआउट है, तो कई बार हमें बताना होता है कि भाई इस लेआउट में ये बेडरूम को यहाँ से इधर से हटा के इधर कर दो, इस चीज को यहाँ से उठा के यहाँ कर दो। कोई प्रोडक्ट का लेआउट है, कोई प्लांट का लेआउट है, आप उसको सीधा यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो यू कैन ईजिली, ये देखिए जैसे देखेंगे आप, ये देखिए तो ये मेरे ऑफिस का लेआउट है, तो नया अपग्रेड कर रहे हैं ऑफिस को, तो ये देख रहे हैं, तो इसमें हमने देखिए यहीं पर ही मैंने इसको नोट कर दिया है, देख रहे हैं आप। तो यहीं पर हमने, ये देख रहे हैं आप, तो इसके लिए स्टडी करना कितना इजी हो गया, इसकी रेफरेंस की इमेजेस, इसकी रेफरेंस के वीडियोस, देख रहे हैं सब कुछ यहीं आ गया।
तो दिस मेक्स इट वेरी इजी। जैसे मुझे क्या है, मैंने कहा भी मुझे फोन बूथ चाहिए, कहते हैं हाँ इस तरह की हम फोन बूथ बना देंगे, ये देख रहे हैं आप। तो यू नो दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी कोलैबोरेटिव। एंड जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, तो मतलब इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कितने सारे ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हैं आप कार्ड आईडी, माइंड मैप, चार्ट्स, वायरफ्रेम लाइब्रेरी, वेब पेज कैप्चर, ये देख रहे हैं आप गाइस, डायग्रामिंग, स्टिकर, इमोजीज, गेट मोर एप्स। सो देयर आर। संजीव जी, कौन है आपके वेबसाइट डेवलपर? हमारी उनकी इंटरनल टीम ही है जी राजीव जी, हमारे ओके हमारी टीम खुद ही डेवलप करती है ना। तो औरों के लिए भी करते हैं आप? अभी कर रहे हैं शुरू, धीरे धीरे टीम ऐड कर रहे हैं, करेंगे। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा पेन एरिया है सबके लिए, बट लेकिन अभी जब तक हमारी कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको हाँ नहीं बोलूंगा। चलो, जब भी करो मेरा फर्स्ट करना। हाँ, राइट राइट, डेफिनेटली। तो अब ये देखेंगे आपकी, ये जो टूल है इसका नाम है मीरो, ठीक है, और ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा 1.5 मिनट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो चला रहा हूँ। Miro is a whiteboarding platform where your team can create, discuss, and share their work using the simplest tools. It fits right into your team's current workflow. They can add everything from spreadsheets to interactive prototypes to the board. And don't be afraid to run out of space. All you need to do is zoom out to see the big picture. To start a conversation, go to the collaboration toolbar in the bottom left. Suppose your colleague left a comment on the board. He wants your input on a visual for the project he's working on. Let's help him out. Thanks to the growing marketplace, Miro allows you to work with your favorite apps and tools without having to switch between browser tabs. Browse all the apps, or pick your workflow category to find the one that will help you do your job. For example, the Unsplash app can help you find a visual for your colleague's project. Click Install to add it. You can see the installed app when you click on the plus icon. To have it at your fingertips, move it to the toolbar. It's customizable. When the work is done, you can share, export, or present it by moving from frame to frame. This should be enough to get you started. Try using Miro for collaboration with your team right now. So guys, जैसे अभी नकुल का क्वेश्चन आया, इज इट बेटर देन माइंड मैप और माइंड मिक्सचर, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि भी माइंड मैप और माइंड मिक्सचर तो एक मतलब मैं क्या बोलूँ आपको कि जैसे घर होता है ना, घर में एक छोटा सा फर्नीचर है, ये तो पूरा घर है, ठीक है। तो इसका माइंड मैप या माइंड मिक्सचर से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसकी कैपेबिलिटीज और माइंड मिक्सचर, माइंड मैप की तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि माइंड मैप तो इसका एक छोटा सा बच्चा है। तो ये देखेंगे आप कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप डायग्राम भी बना सकते हैं, टेबल्स भी बना सकते हैं, वायर फ्रेम बना सकते हैं, और मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो आप मतलब मानिए कि माइंड मैप तो खैर इसके आगे इसके अंदर ही है सर, माइंड मैप दिख रहा है। हाँ, इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है। ये देखेंगे ना आप, इसमें तो खैर यहाँ पे ना ये सारे जो टेम्पलेट्स आते हैं ना इसके अंदर में, ये टेम्पलेट है। तो ये देखिए, आप लिखेंगे ना माइंड मैप, ये रहा माइंड मैप, ये देखिए, ये रहे माइंड मैप्स। तो इसमें माइंड मैप तो इसका छोटा सा बच्चा है मैं कहूँगा, ठीक है। तो बाकी तो खैर इसको यूज करिए। और बेस्ट चीज पता है क्या है, तो ये miro.com पे आप जाएंगे तो आपको फ्री अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट बनेगा आपका, और उसमें 3 इंटरेक्टिव बोर्ड फ्री मिल रहे हैं आपको, 3, और वो भी एंडलेस है, मतलब किसी की कोई लिमिट नहीं है। तो गाइस, डोंट यू थिंक 3 इज मोर देन इनफ? मैंने कहा 3 इज मोर देन इनफ, राइट? फ्री में 3 आपको अकाउंट मिल रहे हैं, तो आई थिंक इससे ज्यादा तो आई थिंक सर, तो किसी से शेयर करेंगे तो पूरा बोर्ड शेयर होगा ना इसमें? हाँ, अगर कुछ पार्ट शेयर करना है तो फिर आप स्क्रीनशॉट एक और बोर्ड में डाल लीजिए ना, जो आपको नहीं राइट। तो बाकी इसमें फ्रेम्स बन जाते हैं। तो जैसे कोई पार्ट है, तो जैसे कोई पार्ट है, जैसे ये पार्ट मैं आप लोगों से सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे किसी को ना सिर्फ कुछ ये सेक्शन शेयर करना है, तो इसके अंदर में इसको हम फ्रेम कहते हैं। तो आप ये पेपर के साइज के हिसाब से भी फ्रेम बना सकते हैं। जैसे ये फ्रेम बन गया मेरा, तो दिस इज अ फ्रेम, एंड आई कैन व्हाट आई कैन डू इज कि ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम को मैं छोटा बड़ा करके
अपने हिसाब से फिट कर सकता हूँ कि इतना पार्ट मुझे किसी को दिखाना है, और फिर जो है इसको जो है अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यू कैन देन एक्सपोर्ट दिस फ्रेम, और ये देखेंगे यहाँ पे ये एक्सपोर्ट पे आ गया। तो ये अपना फिर इस पर्टिकुलर फ्रेम को, जो ये वाला फ्रेम है, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल, तो दैट यू कैन डू। तो ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर यू विल लव दिस, और आपकी जितनी भी प्लानिंग है सारी एक जगह में आ जाएगी। गाइस, कैसा लगा ये टूल? हाउ डिड यू फाइंड दिस? Amazing. I'll start. वेरी नाइस। This is amazing. Very, very. राइट, तो इसको करिए। अब मैं आज की टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 पेज पर्सनल प्लान। तो इसको सिखाने का क्या लॉजिक था इसके पीछे? तो ये वर्ण हार्नेस है, इन्हीं की टेक्नोलॉजी है ये। तो इनका भी ये कहना है कि आप कितना भी पैसा अर्न कर लो, इन द एंड व्हाट विल इट रियली मैटर, कि आपकी जो रिलेशनशिप थी अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कितने लोगों को आपने हेल्प किया। एंड में आपको यही याद नहीं रहेगा कि मैंने कितना पैसा कमाया, आपने उनके साथ कितना टाइम निकाला, कितना टाइम आपने एंजॉय किया। अब आज आप कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आपको दिखाने के लिए कोई नहीं होता, ठीक है ना, हम जैसे बाहर जाते हैं, कई बार देखते हैं लोग अलग अलग रह रहे हैं, वो चाहे उसने तो लंबोर्गिनी खरीद रखी है, बट दिखाएगा किसको? राइट, ठीक है ना, एंजॉय किसके साथ करेगा? ठीक है, तो वो कहते हैं कि भी अगर आपके ना एंड में ऐसा ना हो जाए कि पैसा तो बहुत कमा लो आप, और उसके बाद में भी आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन ना मिले। ओके, तो यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। यू आर वर्किंग सो हार्ड, बट एट द एंड आप सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दिस पर्सनल प्लान विल हेल्प यू मेक द डिसीजन इन 4 एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो व्हाट आर दोस 4 एरियाज ऑफ योर लाइफ? रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, रिचुअल्स एंड वेल्थ। ओके, एंड ये कहते हैं कि हर क्वार्टर में सिर्फ 60 मिनट्स आप दीजिए, सिर्फ 60 मिनट्स इज 1 आवर, ठीक है। एंड जस्ट फिल दिस प्लान, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं एक्सप्लेन करूंगा। यू नो, इट इज अपने आप से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इनकी पूरी एक वेबसाइट है, मैं वो वेबसाइट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये उनकी पूरी वेबसाइट है, तो ऑफ कोर्स ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, एंड सो आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस, एंड यू कैन गो थ्रू दिस। बट लाइक आई सेड कि मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को लेना, ठीक है। पाइनएप्पल, अनार, बादाम जो भी कुछ है, उन सबका जूस निकालना और आपको खटाक से पिला देना, ठीक है ना। अब आप पाइनएप्पल लेके आओ, छीलो, ये करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास हो तो मैं ये काम बहुत इजीली करा दूंगा, ठीक है ना। तो वो सब मैंने पढ़ लिया है, अब आपके लिए इसको बहुत ही इजी वे में ट्रांसलेट कर दिया विद माय एग्जांपल, राइट। तो अब यहाँ पे अब देखिए, तो एक, हाँ, इसका एक ये 3 मिनट का वीडियो जरूर चलाना चाहूंगा मैं। तो जस्ट लिसन फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ। Business, family, and self. The challenge is for most business leaders, their number one priority, whether they like it or not, ends up being their business. Whatever time they have left, they give to the family, and who gets left out is self. And at the end of the day, they end up presenting both the business and the family. That's why we created the 1-page personal plan. So it brings the same kind of discipline into your personal life as many of you apply to the business. Now, we look at 4 areas. First, what are the relationships that are critical to you? Number 2, what is the achievements that you want to accomplish with those relationships? The rituals then that you want to put in place, and ultimately both the wealth you want to create and how you want to spend that wealth in order to build those relationships. And our view is the best measure of success at the end of your life is not the number of toys you've got, but both the number of people that you've touched positively and the depth of the relationships of those special few that most matter. Now, we've divided it into 4 then time frames. What do you want to accomplish relative to those relationships, achievements, rituals, and wealth over the 10 to 25 year period? What are you going to focus on then over the next 12 months? And then what are you going to look at over the next 90 days? So I'll give you an example. When my son turned 6, I knew he needed to spend more time with me. And I knew if I didn't set a goal, I just wasn't going to do it. And so the relationship focus was my son Quinn. The achievement is we were going to learn Chinese together. Now, he learned it, I didn't. Our ritual was 15 minutes every evening. Now, don't judge me, but I knew if I committed more than 15 minutes, it wouldn't happen. But once we got started, obviously we would spend more time.
The wealth side, yes, the course cost a little bit of money, but it was well worth it in order to build some quality time with my son that year. If you want to learn more about the one-page personal plan, go to the blog where you can download a copy and a step-by-step guide of how to complete, and then share it with your family. Thank you for watching. So we will do this. मैं आपको ये प्लान शेयर करूंगा और ये जो प्लान है आप पहले डाउनलोड कर दीजिए. तो आई एम शेयरिंग द लिंक इन द चैट. तो ये मैंने आपको लिंक डाला. इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्लान है ये इस प्रकार से ये ऐसा खुल जाएगा आपके पास में. ओके, ये ओपन अप लाइक दिस. ओके, और ये गूगल में ही खुल गया है. ये गूगल में ही खुल गया है. अगर आप क्रोम ब्राउजर में है तो खुल जाएगा. इसको आप ऐसे जूम कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं. यू कैन पुट डाउन योर नेम, यू कैन पुट डाउन द डेट एंड देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग हियर ओनली. तो गाइज जितने लोगों ने इसको खोल लिया है, दे आर रेडी टू गो, जस्ट टाइप डन. आई वांट यू टू डू दिस. ओके, ठीक है. डोंट थिंक इन टर्म्स की चलो मैं सिखा रहा हूँ, आप अभी आए हो, अभी करके जाओ इसको. ठीक है ना, दोबारा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे. ठीक है, तो अभी करते हैं इसको. और बाद में ये ध्यान रखिएगा कि जब इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक बटन है, तो और यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं इसमें ना. जैसे एक सेकंड, यहाँ पहले टाइप कर लेते हैं इसको. तो जब आप क्लिक करेंगे इस पे तो ऑप्शन आ जाएगा विद चेंजेस, विदाउट चेंजेस. तो विद चेंजेस पे करिएगा, विदाउट चेंजेस पे नहीं. ठीक है, तो डू इट ऑन विद चेंजेस, डोंट डू इट ऑन विदाउट चेंजेस. ओके, सो एवरीवन इज रेडी टू गो. सो प्लीज टाइप इन योर नेम, टाइप इन योर नेम लाइक दिस. तो नाम टाइप करेंगे आप यहाँ संजीव जैन एंड पुट इन द डेट. तो आप आज का डेट डाल दीजिए 1 जुलाई 2022. ओके, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. आपने नेम डाल दिया, आपने डेट डाल दिया. इसके अंदर में ना यहाँ पर आपको जो पूरा ये सेक्शन दिखाई देगा. अगेन ये मैं तो वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं: रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, रिचुअल्स और वेल्थ. ओके, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, रिचुअल्स और वेल्थ. अब इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहले जो कॉलम है इसमें दिखा आ रहा है फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली और फेथ. ओके, तो ये ना, इससे आप कंफ्यूज ना हो. ये सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है टू रिमाइंड यू कि हम ये एरियाज कवर कर रहे हैं, बट इनका जो है इस कॉलम से, इस रो से कोई रिलेशनशिप नहीं है. ओके गाइस, ठीक है. तो ये मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट देन आई लुक डीप इनटू इट एंड आई थॉट कि नहीं, ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है. ठीक है, कि दे आर कवरिंग दीज एरियाज: फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फेथ, सो दैट आप भी इन सब चीजों को कवर कर ले जो भी चीज हम लिखेंगे उसमें. ठीक है, बट इसका इस रो से कोई मतलब नहीं है. अब इसके अंदर में एक एक करके चलते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा. सबसे पहले रिलेशनशिप्स. तो वो कहते हैं कि इस पूरे कॉलम के अंदर में बेसिकली हम क्या क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं. वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में ना इंपॉर्टेंट लोग कौन है. आपके लाइफ में आपके हिसाब से हु आर द वीआईपीज इन योर लाइफ, हु वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ इन माय लाइफ. आप चाहते हैं कि कौन लोग आपकी लाइफ में ज्यादा हों, वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरी फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, मॉम डैड हैं, ब्रदर सिस्टर हैं. मेरी टीम में कौन लोग हैं जिनसे मैं एक लंबी रिलेशनशिप चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कौन हैं. ठीक है, तो ये टाइप करिए गाइस. ठीक है, अपने इस वाले जो रिलेशनशिप का फर्स्ट सेल है इसमें वो लोगों का नाम टाइप करिए. जो लोग अगर टेम्पलेट पे नहीं कर रहे, आप वैसे भी लिख सकते हैं, अपने पास भी पेन एंड पेपर पे भी लिख सकते हैं. तो वो लोग जिनसे आप एक लंबी रिलेशनशिप चाहेंगे, इसमें आपकी फैमिली हो सकती है, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं. तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे. So when you are done, just type done in the chat या ओके लिख दीजिए. तसल्ली से लिख लीजिए.
So Mohit, the template link I've just put in the chat. फटाफट आप कॉपी कर लो, हम पहले ही सेल पर हैं, ठीक है ना। और ये सीधा आपके ब्राउजर में ही एडिट हो जाएगी, क्रोम ब्राउजर में खुल जाएगी, उसी में एडिट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके जो पहला सेल है उसमें मैंने पहले लिखा है रिलेशनशिप्स। कौन से ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में, आपकी टीम में, आपकी फ्रेंड में, जिनसे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो। तो यहाँ लिखा भी हुआ है 10 to 25 years एस्पिरेशंस, तो मतलब लॉन्ग टर्म। गॉट इट गाइस? ओके लिख दीजिए चैट में। तो अभी तक सिर्फ में टीना का डन आया है, बसंत का, मुकेश का, ओके, एक दो लोगों का और आ जाए, क्योंकि मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैं कोई ऐसा होमवर्क नहीं देना चाहता जो आपको घर पे करना पड़े, हाथों हाथ ही हो जाए। अब इसके अंदर में नेक्स्ट चीज, तो अब हम इसके नीचे आएंगे, तो जो नीचे वाला सेल है वो उसमें लिख के आ रहा है 1 year एक्टिविटीज। आपने ये लिख लिया कि मैं इन लोगों से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हूं, मगर उस रिलेशनशिप के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो जैसे मेरे को अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट करानी है, इस बार मेरी वाइफ का 50th बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। बच्चों का जो करियर है, एजुकेशन है, उस पर फोकस करना है। तो मैंने सोचा हुआ है कि क्रूज वेकेशन लूंगा, हमारी फैमिली काफी बड़ी है, तो वी विल टेक देम ऑन अ बिग क्रूज वेकेशन। और एक टीम के साथ मैं एक प्लान बनाना चाहता हूँ जिसमें कि कुछ ओनरशिप वगैरह, उनको ना ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी हमारी ही है, ओके। तो आपने जैसे फोकस तो कर लिया कि मेरे किस किस के साथ में मैं रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ, बट उसके लिए आप क्या क्या एक साल में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज दैट यू कैन डू इन द नेक्स्ट 1 month, ओके, एंड देयर व्हाट इज द एक्टिविटी दैट यू कैन डू इन नेक्स्ट 90 days, अगले 3 महीने में। जैसे मैं कहता हूँ कि भी चलो मैं वाइफ के साथ में कोई डेट नाइट रखूंगा, या बच्चों के साथ में, बच्चे गेम बहुत खेलते हैं तो गेम नाइट रखूंगा, राइट। या फिर मैं उनको बच्चों को ऑफिस में बुलाऊंगा, कुछ डिस्कशन करूंगा उनके साथ में। और मैं ज्यादा टाइम दूंगा लोगों को, क्योंकि मेरा ना थोड़ा रहता है कि काम को ज्यादा टाइम देता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि 6 to 8 hours मैं रिजर्व करूं अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। 6 to 8 hours पर वीक आई विल डेफिनेटली एलोकेट टू पीपल, ओके। तो ये मेरा 1 year एक्टिविटीज हैं, ये मेरी इमीडिएट 90 days की एक्टिविटीज हैं। तो ये आप लोग भी लिखिए। और इसके अंदर नीचे एक और कॉलम है स्टॉप। तो वो ऐसी चीजें हैं कि जो आपको रुक जाना चाहिए, कि जो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो आपकी ना एनर्जी सारी कंज्यूम कर लेते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके गोल्स से, आपको जो है आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन रिलेशनशिप को ग्रेसफुली आप जो है एग्जिट करो, या ऐसी एक्टिविटीज या जो आइडेंटिफाई करो जो कि आपको इस गोल से हटाती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भी मैं कोशिश करूंगा निकालने की ऐसी एक्टिविटीज को जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, और वो टाइम मैं अपने रिलेशनशिप पे लगाऊंगा। तो अब आपको भी यही करना है। तो ये मेरा एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना। तो फैमिली के अंदर 1 year की क्या गोल्स हैं, 90 days के लिए आप क्या कर सकते हो, और क्या स्टॉप करना है। तो 90 days का मतलब क्या स्टार्ट करना है, तो ये 90 days के एक्शंस है, और आप 90 days में नेक्स्ट स्टॉप क्या करोगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो, इफ यू हैव एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग, so that you can ask me. Just a moment, let me check ki yeah, you can unmute yourself also if you have any doubt. नहीं तो करिए, इसको लिखिए फटाफट, then I will explain the next column.
तो no one like don't worry कि it's a right answer or wrong answer, ठीक है ना? तो I think I've given you pretty good idea. कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है मुझसे पूछ लीजिए. तो ये जो 1 ईयर एक्टिविटीज है, तो ये कि क्या एक्शन आप ले सकते हैं, हमने ऊपर लिख ही लिया कि ये लोग हैं, इनके साथ में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है? क्या उसमें एक्शन ले सकते हो आप अगले 90 डेज में, क्या चीज़ आपको स्टॉप करनी चाहिए. तो जैसे मेरा इसमें एक और एक्शन है जो मैं बाद में ऐड करूंगा, अभी मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा इसमें, कि वीकली लंच, एटलीस्ट वंस इन अ वीक आई विल हैव लंच विद माय टीम. थोड़ा सा सोचने वाला मैटर है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है आपको. तो गाइस टेक 2 more minutes, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं, जो चीज़ पहले दिमाग में आ रही है लिखते जाइए, ठीक है? नो पैरालिसिस बाय एनालिसिस, जल्दी जल्दी करिए, सोचिए मत, जो भी थॉट दिमाग में आ रही है. So there is no wrong, there is no right answer, and this will improve every quarter. So don't worry, ये कोई पत्थर पे लगी नहीं है. तो वो कहते हैं ना कि वर्जन 1 इज बेटर देन नन, ठीक है? तो आप कुछ भी ना डिसाइड करें तो इससे बेटर है कि एक पहली वर्जन तो बनाएं. So you've got 2 more minutes to finish this, guys. 2 और मिनट है आपके पास में, फटाफट करिए. मैं पहले ही इसीलिए अपना एग्जांपल डाल दिया आप लोगों को, ताकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो समझने में. इसको समझने में मेरे को काफ़ी चैलेंजेस आए थे. So one more minute. Okay, great. So now we will move to the next section. Guys, यहाँ तक सब क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना मुझसे. ओके, ग्रेट. तो नाउ कम टू अचीवमेंट्स. तो जो ये सेकंड कॉलम है ये है अचीवमेंट्स. तो वर्ण का इसमें कहना है कि भी इसमें आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि भी आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें. ओके, कि हाउ डू आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड, हाउ कैन आई हेल्प दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी. तो मैं कैसे चाहता हूं कि भी लोग कल मुझे कैसे याद रखें, ठीक है? बस क्या वो सिर्फ ये याद रखें कि हाँ भाई ये बंदा था और इसने बहुत पैसा कमाया, बड़ा अमीर आदमी था, क्या वो ऐसे याद रखें, ठीक है? और बड़ा ही लालची आदमी था, इसने कभी किसी से कुछ शेयर नहीं किया, ठीक है? या फिर आप कुछ और भी चीज ऐसी, अपार्ट फ्रॉम द मनी यू वांट टू लीव सम अदर लेगेसी. ओके, तो इसमें ना क्या इसके अंदर में
देखने वाली बात है कि व्हाट आर द मेजर वेज यू वुड लाइक टू मेक एन इम्पैक्ट थ्रू योर वर्क. ओके, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मॉनेटरी गोल्स. तो आपके पैसे के गोल के अलावा आप कैसे चाहोगे और लोगों को इम्पैक्ट करना अपने काम के थ्रू. तो उसके अंदर में ऐसा होता है जैसे कि आप औरों को मेंटर कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई नॉन प्रॉफिट सेटअप कर दिया, कोई चैरिटी कर रहे हैं आप, ठीक है. तो थिंग्स दैट मेक यू फील गुड एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी. तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी और फिर खुद भी एक्सपीरियंस करी. जैसे मैं रोटरी से जुड़ा और जगह से जुड़ा कि जब हम देते हैं उसी में हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है. तो देने में ही सबसे बड़ी खुशी है. अभी जैसे हम रिसेंटली, मेरे फादर भी मुझे कह रहे थे, कहते बड़ा कि ये गौतम अडानी है, ये देखो पता है जैन है. मैंने कहा अच्छा, अडानी जैन होते हैं? कहते इसने 60,000 करोड़ दिया. मैंने कहा जैनी बहुत पैसा देते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ, देखो वो भी करा, उसने भी करा. तो दीज आर द थिंग्स दैट मेक पीपल प्राउड, ठीक है ना. Now do the same for your personal life. Think about the ways you can make a difference to the key people in your life, right? तो आपको पैसे के अलावा आप कैसे और लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो और कैसे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो इस दुनिया में अपने काम के थ्रू. ओके, तो इवन जो काम मैं अभी, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, तो मेरा ये कहता है कि दिस इज लाइक, कई बार हो सकता है लोग कहें कि आप फ्री में पढ़ा रहे हो, कर रहे हो. तो मेरी टीम भी मुझे कई बार कहती है कि सर इसका चार्ज करना चाहिए. मैंने कहा नहीं, हर एक चीज मैं चार्जेस के लिए नहीं करता. ये मुझे खुशी मिलती है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना. और मैं भी सीखता हूँ जब सिखाता हूँ, राइट. तो अब मेरा पर्सनल गोल क्या है? हेल्प 5,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स रीच 10x इन देयर बिजनेस. कि 5,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मैं कैसे 10x ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ. मैं, एक और मेरा गोल है लाइफ में कि मैं एक टेक ड्रिवन यूनिवर्सिटी बनाऊं जिसमें कि एकदम ऐसी मेथोडोलॉजी हो जो कि इंडिया के नेक्स्ट लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करे. ओके, देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू हैव अ ग्रेट फैमिली रिलेशनशिप एंड अ स्टेलर मैरिज. कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी फैमिली रिलेशन रहे सबसे, मेरे ब्रदर से, मेरे फादर मदर, ठीक है, सिस्टर, और बहुत अच्छी मैरिज रहे और रिलेटिव से. और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी किड्स हैं और जो मेरी टीम है वो भी बच्चों की तरह ही है मेरे लिए. मैं उनको हेल्प करूँ उनका लाइफ में पर्पस ड्रिवन एम्बिशन. तो मतलब उनका एक पर्पस फाइंड करने में. और जैसे होता है ना कि एम्बिशन की मेरे को इतने करोड़ कमाने, ऐसा नहीं कि मैं हाँ ये करना चाहता हूँ, इतने लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, पैसे तो आएंगे ही आएंगे. तो हेल्प देम फाइंड पर्पस ड्रिवन एम्बिशन इन देयर लाइफ. तो ये अब आपके लिए क्या है, तो पहले इसको आप नोट करिए कि व्हाट आर द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मनी दैट यू वांट टू अचीव. ओके, तो टेक a couple of minutes, 2-3 minutes to decide that. अभी 3:17 हो रहा है, 3:20 तक का टाइम है आपके पास. And at any point you want to stop me or ask me something, do let me know.
ओके आयुष. So guys, okay. अब आपने achievements में कुछ लिखा है? Would someone like to share? Would someone like to share what kind of things you wrote in the achievements? I would like to share. Please, please. Make water available in the entire village where we have a house in Bhimtal. Okay, amazing. Landmark program for all my team members. Very nice. There was a time when even my driver had done landmark. The entire team had done it. Okay, So want to recreate that again. okay. Insurance and medical insurance for all staff members and their families. Okay. Great, great, great sharing, Rajiv ji. Anyone else would like to share? I would like to share. Yes, Tina, please go ahead. First of all, we are already running a food drive on all Mondays. So my achievement would be if you can carry out all across India in all 7 days. Then education of industry workers. We've just done a soft start, so I want to take it to a great level. Then have a wonderful relationship with family. And I want to set couple goals for me and Vikas, to be madly in love with each other and we go out on holidays together. And strength and courage to kids so that they live the life of their dreams with happiness and with satisfaction. Okay, great. Thank Amazing. Amazing. Thank you so much for the lovely sharing. Okay. तो हमें दो लोगों का सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे. And it's the right thing. अब इसके अंदर में नेक्स्ट चीज आती है कि इस अचीवमेंट के अंदर में अब क्या आपके 1 ईयर एक्टिविटीज हो सकते हैं. ये गोल्स तो आपने बना लिए, बट 1 ईयर में आप क्या एक्टिविटीज ले सकते हो. ओके. तो मैंने इसमें जो नोट किया मैं आपको समझा देता हूँ. तो मैंने नोट किया कि मैं ना कहता हूँ कि भी जो टेक मास्टरी एडवांस है, तो ज़्यादातर लोगों का ना ट्रेनिंग में यही प्रॉब्लम रहता है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन टीम डाली है. तो मैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ. तो मैं बल्कि उल्टा अब क्या करूँगा कि मैं जो बिग 4 कंसल्टेंट्स हैं, अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट वगैरह, तो मैं इनके टच में हूँ और इनकी टीम की हेल्प लूँगा मैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ व्हाट मेथोडोलॉजी दीज गाइज आर यूजिंग. ओके. तो उसमें से क्या चीज़ मैं सीख सकता हूँ, तो वो मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा. और मैं एक ब्लूप्रिंट भी बनाऊंगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में क्रिएट करना चाहते हैं. ओके. और फैमिली का एक एक्टिविटी शेड्यूल बनाऊंगा. तो ये मेरा 1 ईयर का गोल होगा कि दीज आर द थिंग दैट आई वांट टू डू इन 1 ईयर. एंड इन 90 days what all things I want to do is कि we meet consultants and understand their process, meet education experts for university. तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, GL बजाज वाले, जिम्स वाले, NDIM वाले, तो उनसे मिलूंगा, उनसे प्रोसेस समझूंगा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं. और अगेन ये वीकली एक्टिविटी जो मेरी प्लानिंग होती है, उसमें फैमिली का भी प्लान डालूंगा. और स्टॉप में भी मेरे को ऐसा कुछ खास ध्यान नहीं आया तो अभी, लेकिन आप डाल सकते हो. तो प्लीज गो अहेड एंड आल्सो पुट डाउन योर अचीवमेंट्स के अंदर में क्या 1 ईयर और 90 days में एक्टिविटीज या और क्या चीज़ आप स्टॉप करना चाहते हो. ये मेरा एग्जांपल आपके सामने है. आई होप इट विल हेल्प यू. तो गो, यू हैव अगेन 3-4 minutes टू डू दिस. कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हो. तो 1 साल में, अगले 90 दिन में, 90 days में, पहले है 1 ईयर और उसके बाद में 90 days में आप क्या एक्शन ले सकते हो. जो पहले लिखी थी उसी से ही इसको रिलेट करना है. हाँ, वही उसी का एक्शन प्लान है. आपने 10 to 25 years का गोल बनाया है वो, ठीक है ना. उसका 1 ईयर में क्या आप एक्शन लेने वाले हो और 90 days में क्या एक्शन लेने वाले हो, बस इतनी सी बात है.
Guys, 2 more minutes. 2 more minutes. Okay, guys, are you done? Or you need some more time? तो जिनका हो गया वो लोग अगर कुछ शेयर करें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने क्या 90 डेज के गोल्स बनाए, क्या 1 ईयर के गोल्स बनाए. Sir, it's incomplete, but this is food drive ka tha. My 1 year will be I'll start a pitch on my website for food drive and for education industry workers. Okay, very good. You will put it, create a website and you'll start the pitch on that. I think we lost Tina. Anyone else would like to share? 1 year में have water storage, overhead storage, 2 water storage tanks installed at 2 places. 90 day में consult neighbors and make a plan. Okay. Great. Consult neighbors and make a plan. Very good. Vivek, you like to share? So एक तो see apart from that personal goals, अभी इसमें एक मैंने business goal add किया because I'm working on that right now. So business goal में एक ये था कि complete IT automation जो करना था, that is 1 year goal. और platform होना चाहिए. It should be platform wherein my exporters can also use, my suppliers can also use. नहीं. Now back up. Okay. यहाँ पे कोई business goal नहीं आएगा. अच्छा, इसमें business goal नहीं आएगा. ये personal plan है. 1 page personal plan. एक Okay. 1 page business plan होता है, वो मैं कराऊंगा आपको. ठीक है. अच्छा, that is different. हाँ, 1 तो page. इसमें मैंने टीम का भी डाला, तो टीम का भी निकालूं, वो सेकंड लाइन लीडर्स डेवलप करना है. डेवलपमेंट करने के लिए ठीक है, डेवलप ओके. इसमें कोई मॉनेटरी गोल्स नहीं आएंगे, कोई वैसे बिजनेस गोल्स नहीं आएंगे. ओके. इसमें कोई वैसे बिजनेस गोल्स वैसे नहीं आएंगे. ठीक है. ओके, आई विल रिमूव दैट. हाँ, तो मतलब दैट बिजनेस गोल्स विल नॉट कम इन हियर. बिजनेस गोल्स आर गोइंग टू बी इन 1 page बिजनेस प्लान. इफ यू वांट मी टू डू इट, आई विल डू इट. ओके. ओके, डन. टुडे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. 1 पेज में बिजनेस प्लान बनवा दूंगा मैं आप लोगों को. ओके. Anyone else would like to share, guys? हेलो. Yes. तो मैं शेयर करना चाहूँगा. कोई बड़ा अभी मेरे पास रिसोर्स तो नहीं है, लेकिन जस्ट मेरे मतलब प्लान थे कि पहला प्लान था कि कुछ कंपनीज को ऐसा मतलब ये में नहीं मतलब किसी भी तरह जो नॉर्मल मैनुअल काम पे चल रहे हैं थोड़ा टेक सेवी होने के लिए हेल्प करना. कोई मतलब प्रोफेशनल प्लान नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हैं. सेकंड प्लान था मेरा कि एक पर्सनल बैकयार्ड में एक छोटा जेट बनाए, सिंगल सीट और कैपेबिलिटी के साथ, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है रिसोर्सेज के चक्कर में. थर्ड प्लान था मेरा कुछ मेरे जी क्या बनाए, एक जेट, प्राइवेट जेट, लेकिन सिंगल सीट. वो एक हाँ एक बीट जेट 5 था, उसके लाइन टाइप सा. और थर्ड प्लान था मेरे कुछ दोस्त हैं वो अपना कुछ लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से कुछ ना कुछ स्टार्ट करवाएं, तो अपना जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है करें. तो अचीवमेंट में मैं अभी जो 90 डेज में जो 1 ईयर में है, 1 ईयर में मेरा कि जो अभी अपना करंट कंपनी एक जो मैंने लिया है उसको एक मॉडरेट उनको पॉसिबिलिटी दिखाना, एक मॉडरेट लेवल पे कि क्या कर सकते हैं हम लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म होके.
वो Okay. 90 डेज में भी कवर कर लूंगा मैं, लेकिन प्लान एक मतलब यहाँ पे भी काफी वैसे है, तो एक कम से कम उसको पॉसिबिलिटी शो करें। सेकंड अपना जो जेट का था कि एक हाइपोथेटिकल परफॉर्मेंस रन टेस्ट रन करें उस पे, मॉडल पे। थर्ड है जो अपना किसी एक जो किसी भी फ्रेंड का बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहता था, तो उसके लिए मैंने उसको कम से कम रजिस्टर कर दें अमेजन पे जीएसटी के लिए, ऐसा सेलर रजिस्टर कर दें, बिजनेस बाद में, लेकिन कम से कम स्टार्ट करे बंदा। तो उसके लिए मैं ट्राई करूंगा उस बंदे का। और जो वन वन ईयर का प्लान है, सॉरी 90 डेज में, इस 1 ईयर में था कि हाइपोथेटिकल ये परफॉर्मेंस टेस्ट था, 90 डेज में इसका एक रफ ब्लूप्रिंट बनाना है जेट का मेरे को, जो वो समझ आ कंपनी को। गया, जी आ गया जी, समझ, सतबीर आ हाँ गया। सर, बस सर, ठीक। ठीक है, तो ठीक। थैंक यू फॉर शेयरिंग सतबीर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, रिचुअल्स। तो होता क्या है कि आप कुछ भी प्लान बना लो, कोई भी चीज़ आप बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान कर लो, बट रियलिटी में वो अचीव नहीं हो पाती अगर हम उन पे कंटिन्यूस काम ना करें। ठीक है ना? जैसे अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, तो उसके लिए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन जो है 10 किलोमीटर भाग के आ गए और फिर आपने अगले 4 दिन तक कुछ नहीं किया। तो आप क्या करते हो, आप रिचुअल बना लेते हो कि एवरी मॉर्निंग 6:30 उठूंगा, 7 o'clock तक मैं हाफ एन आवर 1 आवर वॉक करूंगा। तो व्हाट इज दैट? इट इज अ रिचुअल, एम आई राइट? ठीक है ना? तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको आदत पड़ जाती है कि ठीक है, मैं ना संडे के दिन जो है ये 11 बजे से 11:30 मैं किताब पढ़ता ही पढ़ता हूँ। ठीक है ना? या मैं इन फ्रेंड्स के साथ में मीटिंग करता ही करता हूँ। ठीक है? तो वो गार्डनिंग रिचुअल, करता हूँ। हाँ जी, हाँ गार्डनिंग गार्डनिंग कर गार्डनिंग। तो वो रिचुअल्स होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि ऐसी क्या चीजें हैं, व्हाट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू पीपल आई केयर अबाउट। तो व्हाट आर द थिंग दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू पीपल यू केयर अबाउट, व्हाट एक्टिविटीज हेल्प मी मूव टुवर्ड्स माय लार्जर गोल। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे को, जिन लोगों के बारे में केयर करता हूँ उनके पास लेके आती हैं और मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। और वो कहते हैं कि रूटीन सेट यू फ्री। तो ये जो वर्ण हार्निश है बार बार यही कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम बंदना नहीं चाहते, बट वो कहते हैं कि उल्टी बात है। एक्चुअली में रूटीन सेट यू फ्री, ओके, रूटीन सेट यू फ्री। एंड अंकुर, देर इज नो सच पीपीटी दैट इज देयर। आई कैन शेयर द लिंक ऑफ द सोर्स। तो जहाँ से ये आया है मैं सभी के लिए शेयर कर देता हूँ फिर से। तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है ये वर्ण हार्निश का है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। यू कैन एस्टैब्लिश, तो इसने कहा कि रेगुलर रूटीन विल हेल्प यू अचीव लार्जर गोल्स। यू कैन एस्टैब्लिश रूटीन विद पीपल whose presence in your life supports your bigger goals, either personal goals or relationship goals। तो वो कौन से लोग हैं जो कि आपको अपने ये अचीवमेंट करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे मैंने रिचुअल्स में लिखा कि मैं 1 ईयर, जैसे मेरा ईयरली फैमिली रिट्रीट प्लान करूंगा, तो हर साल पूरी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है ना? और मेरा ना बड़ा मन रहता है कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में को जाना चाहिए, मैं नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ। तो वो मैं करता नहीं, बट मैं प्लान करूंगा। ठीक है कि आई विल गो आउट। अभी तक तो कोरोना चल रहा था तो वी डिडंट डू दैट। ओके। एंड वीकली फैमिली एक्टिविटी प्लान, तो मैं ना फैमिली की एक्टिविटीज को प्लान नहीं करता, तो मैं ये भी करना शुरू करूंगा। तो मेरी वीकली प्लानिंग में जब करता हूँ उसमें फैमिली एक्टिविटीज को भी मैं प्रेफरेंस दूंगा। राइट? फिर एक मैंने और सोचा है कि मैं ना, क्यों ना मैं टेक एंटरप्रेन्योर्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनको मिलूं मैं। उसके अंदर में और ट्रेनर्स भी हैं, तो उनको मैं वीकली बेसिस पे छोटे छोटे ग्रुप में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाऊंगा, उनको मैं मिलूंगा। तो मे बी आई मीट देम। और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। तो जैसे इसके अंदर में 1 ईयर एक्टिविटी, तो मैं कहता हूँ कि फिक्स शेड्यूल ऑफ अबव एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज का एक शेड्यूल बना लूँ मैं। और मीट एटलीस्ट 1 MD पर वीक, तो जो एटलीस्ट एक मेरा स्टूडेंट है उससे मैं हर वीक मिलूं। एंड रिव्यू अबव गोल्स रूटीनली, तो ये जो गोल्स हैं इनको मैं रूटीनली मॉनिटर करूंगा कि इन पे मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ। ओके। अब इसमें मैंने सोचा है कि मैं 90 डेज में क्या शुरू करूंगा कि मैं फोर्टनाइटली मास्टरमाइंड मीटिंग रखूंगा। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे और फेलो ट्रेनर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ में एक ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर कि मैं हर 2 हफ्ते में एक मीटिंग करूंगा और ये गोल्स को रिव्यू करूंगा और एक मेडिटेशन करूंगा शुरू, ताकि मैं अपने माइंड को काम कर सकूं और ज़्यादा इंस्पिरेशन ऊपर से ले सकूं। इसी को मैं स्टॉप क्या करूंगा कि आई विल स्टॉप वॉचिंग टीवी। तो टीवी कई बार ज़्यादा देख लेते हैं, ये सीरीज वो सीरीज, ऑल्दो मैंने काफ़ी कम किया है। बट तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें सपोर्ट नहीं करती। हो सकता है आप किसी चीज़ में आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप स्टॉप कर सकते हो क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं और वो आपको
हो सकता है इतना टाइम ना छोड़ें कि आप और कोई चीजें कर पाओ। तो ये जो चीज है, जो आपने रिचुअल्स लिखने हैं यहाँ पे कि व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, तो वो आप जो है अगले 1 ईयर में क्या कर सकते हो, अगले 90 डेज में क्या कर सकते हो। तो ये मैं आपको जूम आउट कर दिया मैंने, तो यू कैन रीड दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस, एंड गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग दिस। भरना शुरू करिए। तो इनकेस कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो वो लोग जो ये प्लान है उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिंक दे दिया आप लोगों को। तो ये 1 पेज पर्सनल प्लान है, ठीक है। तो जितना भी आप समझ रहे हैं उतना भर लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद आप मेरी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग टेक फ्राइडे की देख करके फिर आप भर सकते हैं। संजीव जी, एक क्वेश्चन है, जैसे टेक टीएमए टू द नेक्स्ट लेवल विद 121 कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस, क्या इसी के नेक्स्ट में फिक्स शेड्यूल फॉर दीज एक्टिविटीज आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये कॉलम बाय कॉलम जा रहे हैं हम। इस कॉलम का इस कॉलम से रिलेशन नहीं है। राइट। तो ये जो है ये ऊपर से पढ़िए आप, ठीक है। मैं साइड को हटा सकता नहीं हूँ, तो ये ऊपर से पढ़िए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ठीक है। ओके, यूं कोई रिलेशन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। लेफ्ट टू राइट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। राइट। तो कोई भी रिलेशन लेफ्ट टू राइट नहीं है। जो रिलेशन है वो सिर्फ मतलब ऐसे है, टॉप टू डाउन रिलेशन है, ठीक है जी। तो इट इज ओनली रिलेशनशिप इज टॉप टू डाउन, इट इज नॉट लाइक दैट। एक सेकंड ठहरिए ना। मतलब ये जो रिलेशन है टॉप टू डाउन है, इट इज नॉट left to right, it is top to down. Okay, I'll have to see how to rotate this thing. Okay, unfortunately it's not allowing me to rotate for the moment. तो ये ऊपर से नीचे, मतलब ये ऐसे आएगा। ये मतलब ये जो चीज है ना, ऊपर से नीचे आएगी, इधर से इधर आएगी, यहां से यहां, यहां से यहां। तो दिनेश जी, लिंक मैंने डाल दिया है, मेन लिंक यही है, ठीक है ना। और अगर आप इसकी ओरिजिनल ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ब्लॉग का भी मैंने लिंक दे दिया आप लोगों को। जो आपने लिंक डाला ना, उसका वो भी बार कोड भी बना देते हैं। अच्छा अच्छा, वो मेरे को लगा कि ज्यादातर लोग लैपटॉप से आते हैं ना, तो उसमें लिंक ज्यादा इजीली खुल जाएगा। और वैसे आजकल इनके बारकोड बनाने कोई मुश्किल नहीं होते। जो भी ये लिंक्स है ना, ये देखिए। वैसे ही आप बार में मास्टरी आपकी है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए आप, ये देखिए
जैसे कोई भी अगर लिंक अगर खुला हुआ है ना, तो ये जो लिंक है देखेंगे, मैंने लिंक खोला एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं क्रिएट QR, ये देख रहे हैं ये आ गया QR, तो आप ये QR यहाँ से स्कैन कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कोई आजकल वो नहीं चाहिए होता, कुछ चीज़ चाहिए नहीं होती, ये लाइव है, मतलब हाथों हाथ ही। तो हरविंदर जी, मैं ना रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, मैं अपना वाला ऐसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक बड़े वाले बोर्ड के अंदर है, मीरो के अंदर है, ठीक है। मैंने दिखाया था, आप शायद थोड़ा मिस कर गए उस चीज़ को, तो यू कांट कम आउट, बट आई विल शेयर द वीडियो एनीवेज। तो सारा मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। और इसी तरह से जो ये 1 पेज पर्सनल प्लान है, तो दिस ऑल्सो यू कैन डाउनलोड। ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसका भी QR कोड बना दिया मैंने, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो QR कोड लाइव, मतलब लाइव रहते हैं QR कोड। ग्रेट। आई थिंक राजीव जी ये चीज नहीं पता थी आपको, राइट, कि ऐसे QR कोड बन जाते हैं, हर एक वेब पेज के QR कोड बन जाते हैं, राइट। एक बार दोबारा दिखाओ QR कोड कैसे बनाया। बस ये क्रोम है, क्रोम में यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये देखिए, हाँ जी, और इस शेयर पे क्लिक करें तो कॉपी लिंक, क्रिएट QR कोड, कास्ट, शेयर लिंक टू व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, तो इसमें जनरेट QR कोड आ गया, QR कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट्स सो इजी, है ना, अमेजिंग। सर मुझे QR कोड नहीं दिख रहा, दूसरा सब कुछ दिख रहा है। राजीव जी आपको दिख रहा है QR कोड जो मेरी स्क्रीन पर है? आपके स्क्रीन पे तो दिख रहा है। तो फिर हमारे इसमें नहीं दिख रहा सर। क्या मतलब, आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा? नहीं, वो जो मेन्यू में है ना, कास्ट वगैरह है, सेव पेजेस, वो गूगल के अंदर दूसरा एक ऑप्शन है, गूगल के अंदर भी है अवेलेबल। गूगल के अंदर अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे एक स्क्वायर सा ऑप्शन है, आप बिसाइड द स्टार आइकन, ये क्रोम के अंदर अगर क्लिक करेंगे। नहीं, आप क्रोम यूज कर रहे हो, विवेक कुछ और यूज कर रहे हो? आपको सर क्रोम ही है। शेयर दिस पेज भी दिख रहा है हमको, तो वो मेन्यू में 4 आइटम जो दिख रहा है ना, उसमें QR कोड वाला मिसिंग है। हाँ, कॉपी लिंक का, सेव पेजेस, वो सब दिख रहा है नीचे का। अपडेट कर लो, डायरेक्ट QR कोड वाला ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, I'll find it। हाँ सर, उसके लिए ना आपको पहले एक बार कोई लिंक ओपन करना पड़ेगा। वहां पे ना आप कर रहे होगे, आप न्यू टैब पे ट्राई कर रहे होगे। अगर आप न्यू टैब पे ट्राई करोगे तो लिंक और QR कोड का ऑप्शन नहीं आएगा। वहां पे पहले किसी लिंक को ओपन कर लीजिए। अच्छा गाइस, आप लोगों ने करा, someone would like to share, उन्होंने क्या रिचुअल लिखे to help everyone understand better? Go ahead, don't be shy. So few rituals are overlapping. I mean, what I've written for family and right. I understand. वो होगा, but फिर भी आप बता सकते हो क्या examples हैं? So for rituals, I've for 25 years we have written manifestation, meditation, exercise, department meetings, vacation with friends and family, and yearly company meeting. Then for 1 year is again department meetings to be held monthly, 1 family trip and 1 trip with friends. For 90 days, every day MDO meeting and daily production meeting, which I miss out on WhatsApp, that I have to attend. Then having EMs regularly, then dinner with family, dinner with friends, and to get ready early. And to stop is I'm sleeping a little late now, so stop sleeping late and get up early in the morning. Right, very good. तो जैसे मैंने भी कई सारी चीजें इसमें नहीं डाली हैं, जैसे कि हमारी ईयरली रिट्रीट तो होती है अपने आजकल टीम के साथ, तो अब 1-2 बार हो रही है, तो वो मैंने नहीं डाला, बट आप डाल सकते हो। राजीव जी, आप शेयर करना चाहोगे, आपने क्या लिखा? मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, लिखिए फिर लिखिए। अच्छा, मैं 1-2 चीजें आपको अंदर मीनवाइल, इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट उस पर लेके जाऊं, मैं लास्ट वाला अब आपको कराता हूं। तो एक चीज लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक हम कल एक छोटा सा एक और वर्कशॉप कर रहे हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे। तो अगर आप में से कोई अटेंड करना चाहे, जो लोग नहीं व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं अभी, उन लोगों के लिए कहूँगा मैं। तो ये कल है, तो मेरी टीम इसमें डेमो देती है कि एग्जैक्टली होता कैसे है। जिनको कंसेप्ट वगैरह नहीं समझ में आता है, तो व्हाट्सएप के डेमो आप कल
रजिस्टर कर सकते हो इसके लिए। तो WhatsApp डेमो, so this you can attend, okay, and you can definitely attend। और एक और लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ना स्टोरीज डालता हूँ डेली बेसिस पर, उसमें टेक टिप भी डालता हूँ, स्टोरीज एंड टेक टिप्स। तो अगर आप चाहो कि आप या आपके फैमिली मेम्बर या आपकी कोलीग्स को वो स्टोरीज मिलें, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस ग्रुप। तो मैंने आपको दे दिया है चैट है व्हाट्सएप, इसमें और कुछ नहीं होता, स्टोरीज और टेक टिप्स ही होती है, मतलब इसमें और कोई डिस्कशन भी अलाउड नहीं होता है इसके अंदर, वैसे उसी वन वे ही है बस। ये मैंने आप लोगों को एक लिंक दे दिया है, ये दे दिया मैंने ऊपर, ये WA डेमो जो लिंक आ रहा है, व्हाट्सएप डेमो गुरदीप जी, वो आप देख सकते हैं। और फाइनली एक रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूँगा बिफोर वी मूव ऑन, इज दैट कि जो 9 जुलाई है, 9 जुलाई में टेक अलुमनाई है, ठीक है। और ये हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन हम इस बार दोनों करेंगे, तो ये हाइब्रिड मॉडल में होगी। तो जो लोग दिल्ली NCR में हैं वो लोग ज़रूर अटेंड करें इसको, और ऑफलाइन ही अटेंड करें तो और मज़ा आएगा उनको, ठीक है। बाकी एक सेकंड ठहरिए, मैं ना आपको इसका एक बार वो दिखा भी देता हूँ। आई विल शो यू द, तो बहुत ही क्रेजी टाइप की टेक्नोलॉजी हम लोग इस बार भी लॉन्च कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी सोची भी शायद नहीं होंगी। तो ये है टेक अलुमनाई, और आप लोग इसके लिए अपना प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। जो लोग टेक अलुमनाई मेंबर्स हैं वो लोग अपना प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेक अलुमनाई मेंबर होना चाहिए आप लोगों का। तो मैंने लिंक दे दिया, तो प्लीज़ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड एंटर योर पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस, कि आप फिजिकली आना चाहोगे कि आप ऑनलाइन आना चाहोगे। तो विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स। तो उसमें बहुत क्रेजी टाइप की टेक्नोलॉजी हम लोग शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि जैसे मैप्स है, तो मैप्स का एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि अब ये इंटरेक्टिव मैप्स हम देंगे आपको। तो जस्ट टू शो यू कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ना मैप्स, मैं आपको एक सेकेंड ये ना यूट्यूब पे ही चला देता हूँ, एक सेकेंड मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो कई बार आप चाहते हो कि आपके सेल्स के लोग जाएं या कोई लोग जाएं, आप कहीं जा रहे हो तो आप अपने सारे कस्टमर्स किस एरिया में, नोएडा सेक्टर 66 में कौन कौन है, तो ये दिख रहे हैं, पूरा एक इंटरेक्टिव मैप बन जाएगा। और इसके अंदर में आपको पूरे कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं कि 319 दिल्ली में है, 118 यहाँ पर है। फिर आप जूम इन कर सकते हो, यहाँ कंपनी, फुल नेम, सिटी, ठीक है ना। और एक सर्टन एरिया में आप इंस्टेंटली अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को देख पाओगे और क्लिक करते ही उनकी सारी डिटेल दिख जाएंगी आपको। तो ये लाइव इंटरेक्टिव मैप है। तो कल को आपकी सेल्स टीम के लिए भी ये एक बड़ा अच्छा वो हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्रेजी टेक्नोलॉजीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट रिमाइंडर के लिए बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि मैं टैली से इंपोर्ट करना है, तो हमने उसका भी तोड़ निकाल दिया है कि अब टैली से डायरेक्टली जो है गूगल शीट्स में इंपोर्ट होगा आपका जो भी पेमेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी शीट में आ जाएंगी। और भी बहुत सारी क्रेजी टेक्नोलॉजीज हैं दैट यू विल गेट टू सी। अभी धीरे धीरे हम टीजर्स रिलीज करेंगे, हर 2-3 दिन में आपको वो टेक्नोलॉजीज दिखाई देंगी। तो डू ब्लॉक योर टाइम फॉर दिस अमेजिंग इवेंट। सर इसके अंदर हम बीजी से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे क्या, या सिर्फ टैली से? अभी तो हम लोगों ने टैली से किया है, पहले टैली का सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम बीजी पे रखेंगे। ओके सर, ओके। तो फिलहाल अभी हमने टैली से किया है और वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई बहुत लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये जरूर ब्लॉक कर लीजिएगा 9 जुलाई 9 to 2, ओके, शॉर्ट टर्म में ही है। और अभी जो मैंने लिंक दिया है उस पर अपना पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। और जो लोग मेंबर नहीं भी हैं वो लोग भी भर सकते हैं, उनको हम कांटेक्ट कर लेंगे इफ दे वुड लाइक टू बिकम मेंबर्स, सो यू कैन सी अगर वो एलिजिबल हैं तो। नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉलम, तो व्हाट इज दिस लास्ट कॉलम? दिस इज वेल्थ, ओके।
तो ये कहते हैं कि इसमें क्या कंसिडरेशन है, व्हाट causes and communities matter to me, what experience do I want to share with my important people in my team, ठीक है ना। मैं कौन सी जो मेरी वेल्थ है, ठीक है, क्या मैं उसको अपनी कम्युनिटी के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं क्या मैं वो शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे इसके अंदर में आप अपने वेल्थ को एज अ रिसोर्स यूज करो, ओके, सब टू सपोर्ट द प्लान दैट यू जस्ट क्रिएटेड। और आप ना सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ के बियॉन्ड देखो, तो वेल्थ जो है, मनी जो है, उसका अपने आप में कोई यूज नहीं है। तो मनी जो है वो जो है आपकी वेल्थ जो है, लेट इट फ्लो थ्रू यू इन सर्विस ऑफ अदर्स, रादर देन जैसे कहते हैं ना कि भी एक चलती हुई नदी होती है तो आप उसी में नहाना पसंद करोगे, उसी से पानी पीना पसंद करोगे। अगर वो नदी चल नहीं रही तो क्या है, वो स्टैग्नेंट वाटर है, राइट। एंड नो वन वांट्स टू डील विद, क्योंकि वो तो फिर एक गंदा नाला बन जाएगी, राइट, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आप जो है सिर्फ अपनी नहीं सोचो, अपने रिसोर्स को यूज करके वेल्थ क्रिएट कर रहे हो सभी के लिए, ओके। तो जैसे मैंने क्या लिखा इसके अंदर में, मेरे क्या गोल्स हैं लॉन्ग टर्म में, तो क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, या ट्रस्ट टू नर्चर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हु हैव पर्पसफुल एम्बिशंस एंड मेक इंडिया प्राउड। तो मैं कहता हूँ कि भी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कंपनी COIT बॉक्स, तो ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा रही है, बट ये फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स को तैयार कर रही है, और ये मेरे बियॉन्ड भी चलती रहेगी, मेरे बियॉन्ड भी ये गोल को फुलफिल करेगी, एंड इट विल मेक इंडिया प्राउड, क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं साथ ही साथ ये भी सोचा कि मैं 1000 कंपनियों को कम से कम मैं हेल्प करूं, जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं, जो कि मेरी ट्रेनिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, या उनको बहुत लो कॉस्ट ट्रेनिंग दूं मैं, ताकि मैं उनके उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करूं। फिर मैंने अपनी टीम से भी प्रॉमिस किया कि मेरी 200 से बड़ी टीम है, अभी मैं उनको रिसेंटली तो कई कई जगह ले गया, कुछ लोगों को अंडमान ले गया, कुछ लोगों को ऑलमोस्ट 150 लोगों को ले गए थे जिम कॉर्बेट। बट मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैंने कहा तुम लोगों को मैं बाहर भी मैं ही घुमा के लाऊंगा। तो 200 से ज्यादा लोग हैं, आई विल टेक देम टू अ फॉरेन ट्रिप इन US, UK, यूरोप, समवेयर आई विल टेक देम, ओके, एंड आई विल ऑल्सो हेल्प माई टीम रीच देयर ट्रू पोटेंशियल। तो ये मैंने अपने लिए जो है ये गोल्स बनाए कि दीज आर द गोल्स दैट आई वुड लाइक देम टू अचीव, ओके। और इसके लिए मैं करूंगा क्या, तो स्टार्ट विद पर्पस सेटिंग एक्सरसाइज फॉर बिजनेस ओनर्स। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ना वो सिर्फ पैसे को ही पर्पस मानते हैं, वो अपनी कंपनी का कई बार पर्पस सेट नहीं कर पाते। तो मैं सोच रहा था कि मैं उनको हेल्प करूंगा, ताकि वो ना लॉन्ग टर्म रीच करने के लिए या इस पोटेंशियल को रीच करने के लिए पहले तो उनका पर्पस क्लियर होना चाहिए। फिर ये प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा छोटी कंपनियों के लिए, और टीम की जो ग्रोथ प्लानिंग है तो इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो ये मेरा गोल होगा कि ये कुछ इनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इनकी करियर प्लानिंग पूरी मैं कर पाऊँ। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि इन इन प्रायोरिटीज़ पे मैं 2-2 घंटा देना शुरू करूंगा। तो मैंने 90 डेज में सोचा है कि मैं 2-2 घंटा हर हफ्ते इन इन चीज़ों पर दूंगा, ओके। इसमें स्टॉप ऐसा कुछ खास है नहीं, ओके, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ऐसा मेरे को नेगेटिव कोई वो है नहीं कि जो इस चीज़ को इम्पैक्ट करे। अब आप लोग भी इस चीज़ को देखिएगा, और ये टॉप डाउन ही आपको करना है। तो व्हाट आर द थिंग्स हाउ यू कैन शेयर योर वेल्थ एंड एक्सपीरियंस विद अदर्स, उसके लिए क्या एक्शन आप 1 साल में ले सकते हैं, क्या एक्शन आप 90 डेज में ले सकते हैं। तो ये टाइप करिए। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछिए।
Guys, any questions? Any questions? जो लोग कर लें जरा एक बार मुझे बता दें. संजीव जी, मेरा क्वेश्चन है. हाँ जी, पूछे राजीव जी. मैंने लिखा है इसमें गिव कस्टमर्स प्लांट्स. मैं भीमताल में प्लांट्स उगा के ये गमले, फ्लावर के गमले अपने कस्टमर्स को देना चाहता हूँ. वो एक्शन हो गया, वो नीचे इसमें आ गया 90 डे एक्टिविटी में. बट वो एक्चुअली में उसका ओवरऑल पर्पस क्या है? ओके, 1 ईयर एक्टिविटी में मैंने लिखा है 10,000 और 90 डेज में लिखा है 1,000. वो तो ठीक है, इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? यहाँ ऊपर क्या पर्पस आएगा इसका? आप करना क्या चाह रहे हो? आप क्यों देना चाह रहे हो? टू मेक आवर कस्टमर्स हैप्पी. Okay, but in what way? By giving plants, what are you doing? Making them feel special. Making them feel special. What yes. else? What else? Making them more in a conscious towards the environment. कि grow Yes. plant trees and तो ये आप कर सकते हो कि भी help the environment and help build green consciousness towards planting more trees. Okay, by gifting this to the customers, so you're giving back to the society. तो आप कह रहे हो कि उसका ना छोटा सा मैसेज भी लगा सकते हो कि प्लांट मोर ट्रीज. जैसे आज हम सतगुरु को देखते हैं तो वो सेव सॉइल चल रहा है उनका, तो आप वो भी कर सकते हो कि सेव सॉइल भी लिख सकते हो, उनसे भी टाई अप कर सकते हो कि चलो मैं भी कुछ करता हूँ जिसमें कि हम सतगुरु के मैसेज को पहुंचा पाए. ठीक है ना? तो सॉइल को बचाने के लिए प्लांट्स लगाइए. एम आई राइट? ठीक है ना? तो समथिंग लाइक दैट, मेक इट इवन मोर पर्पसफुल राजीव जी. ठीक है ना? और देखिए पावर आ गई इसके अंदर. तो अच्छा, पर बिजनेस से उसको रिलेट नहीं करना है. नहीं, मतलब ये नहीं कहना, दिस शुड नॉट बी कि ओके टू मेक मोर लॉयल कस्टमर्स आई एम डूइंग दिस. दैट इज नॉट द इन दिस. देन इट, ये पर्सनल है. ठीक है? इट हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस जनरेटिंग मनी. दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी कि आप एक्चुअल में टूल गिव कर रहे हो. यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. अब आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर में डोंट थिंक इन टर्म्स एज अ स्ट्रेटजी कि ठीक है मैं ही करूंगा तो मुझे और ये मिलेगा. तो वो गलत थिंकिंग है. फुली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो, खुले दिल से दे रहे हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग समथिंग इन द रिटर्न. ओके, गॉट इट. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं डेली स्टोरीज डालता हूँ, आपने देखा होगा मेरी स्टोरीज आती भी हैं. बहुत अच्छी लगती है. मेरी सासू माँ को भी मैं भेजता हूँ. तो आप देख रहे हैं कि मेरा ना उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं होता. जैसे मेरी टीम ने कहा ना कि इसमें ये भी डाल दो, वो भी डाल दो. मैंने कहा नहीं. कहते इसमें लोगो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मेरा कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है. ठीक है ना? हर एक चीज मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा. जहाँ पैसा कमाना है वहां भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट हर एक चीज जो है पैसा कमाने के लिए नहीं करूंगा. ओके, लो आपके तो डिमांड आ गई है. राजीव जी, गिव प्लांट टू टेक अलुमनाई टू. भेजो जी, आप 200 गमले भेजो टेक अलुमनाई में. मोस्ट वेलकम. Great. Anyone else would like to share, guys? राजीव जी ने तो शेयर किया. Who else would like to share? Sir, I can share. Please. टीना बहुत enthusiastic है, I must say कि हमेशा contribute करती है और इससे ना आप सबको हेल्प होता है. बाकी सारे इतने शाय हैं हमारे, सब शर्माते हैं. Okay, टीना. So my 25 years plan is building a better tomorrow. So उसमें pointers are written as Feed India, education, go green, save water, and plastic waste management. So for that, I've been in 1 year contacting NGO in this regard, regular training on water management and saving the planet. And to start with, I've just able to do that. First, I have to create awareness among my own staff members, my laborers in my neighborhood, not to waste water, especially my servants. So this is a. I think that's excellent कि आप घर में ही अपने के छोटे से ही शुरू कर रहे हैं, चाहे आप अपने फैमिली मेंबर से, अपनी टीम मेंबर से. Excellent, Tina. I think that gives everyone excellent idea. I would encourage, please go ahead. And to stop, I'll give like encourage reuse in the household itself.
stop wasting water and not to use things that are just used one time and to reuse bottles and everything. Right, right. Excellent, excellent. बहुत बढ़िया guys. Who else would like to share? Who else would like to share? Ayush, Manas, Chandrasekhar, Dinesh, Dr. Rakhi, Harvinder ji, Ijlal, Kunal. अरे अभी जूम में बस एक और फैसिलिटी आ गया जिसमें कि मैं अंदर से ही नहीं पहुंच जाऊं ओके ग्रेट तो गाइस आप लोगों ने कर भी लिया है अभी तक, क्या लिख ही रहे हैं लोग? Harvinder ji, you want to say something? Jaya, you want to say something? अच्छा एटलीस्ट डन तो लिख दो अगर कर लिया है तो, मुझे पता तो लगे कर लिया कि नहीं कर लिया. ओके, विवेक says almost done. Go ahead, go ahead. Some people are still writing, this means. Okay. ये मैंने शीट अभी थोड़ा लेट शुरू किया था, देखा था, अदरवाइज मैं भी शायद भर लेता. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं आई थिंक मैं सब चीजें लाइफ में कर रहा हूँ. मेरा सोशल सर्कल भी काफी बड़ा है और सोसाइटी में काफी मतलब पॉलिटिकली, रिलीजियस पॉलिटिकली भी हूँ एक्टिव, और दूसरा एनजीओस के साथ काफी एक्टिव हूँ. अपने बिजनेस में तो पैसा कमा ही रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कि वो पैसे के अंदर जो अपने बिजनेस में से जो हम 10% अपना शेयर निकालते हैं वो हम लोगों को वैसे गुरुद्वारे के लिए प्रमोट करने के लिए बोला जाता है, बट वो मैं डायरेक्ट चैरिटी करना ज्यादा पसंद करता हूँ एनजीओ के थ्रू. तो हम लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग सब बिजनेसमैन हैं, तो वो सब 10% अपना डालते हैं और हम उसी पैसे से ही चैरिटी करते हैं, मतलब किसी से डोनेशन वगैरह नहीं लेते हैं. वही देख रहा था, लिखने के लिए काफी कुछ है मेरे पास भी प्रिपेयर्ड. नहीं बढ़िया, आप इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करिए क्योंकि इस पूरे प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है. इसको प्लान करके नहीं किया हुआ, बट अदरवाइज यस. इसका ये कहना है कि जैसे आप बिजनेस के लिए तो बहुत प्लानिंग कर लेते हो, बट एक्चुअल में एंड में जब बात आती है कि आपकी रिलेशनशिप्स क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है, आपने औरों को कैसे हेल्प किया, आपने लिए और मतलब पूरी सोसाइटी के लिए क्या किया, उसके लिए हम कुछ प्लान नहीं करते. और रियलिटी में वही चीजें एंड में आपको याद रहेंगी, ठीक है ना, और वही चीजों के लिए लोग आपको याद रखेंगे, ठीक है ना. और इसमें ऐसा भी है, देखिए कई लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोग खुद अभी पर्सनली काम कर रहे हैं और आपका फोकस अपनी वेल्थ के ऊपर है, राइट. तो कई लोगों का होता है कि मैं अपने लिए तो कमा लूं पहले. तो इसके अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा कि रियलिटी में जो लेसन मैंने सीखा ना लाइफ में, ठीक है, तो मैं 2006-07 में मैंने अपना आईटी का बिजनेस शुरू किया. बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के बिजनेस है, आईटी का बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी आल्सो, और मेरे को था हाय 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 मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ऑर्डर कैसे मिलेंगे, मेरा इधर पैसा चला गया, वो चला गया. तो मेरे लिए था कि मैं और मैंने ना उसमें ना फिर यही था कि अच्छा ये प्रोडक्ट आया कि ठीक है टीना को ये बेच दो, ठीक है राजीव मंगलानी से मिले इनको ये बेच दो. तो मेरा दिमाग वैसे ही चलता था कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ये आदमी बैठा है मुझे क्या दे सकता है. तो इट वॉज ऑल अबाउट मी एंड मेरे को उसमें कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है ना. आई वॉज ऑलवेज आस्किंग, आई वॉज नॉट गिविंग, ओके, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ. मैन आई सेड कि नहीं यार ये ना सोचना गलत है, ये तरीका गलत है. मैं अगर कस्टमर के पास जा रहा हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं इसको सर्वर भेज दूँ, मैं इसको डेस्कटॉप भेज दूँ, मैं इसको सॉफ्टवेयर भेज दूँ. इसको पूछूं इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, इसको परेशानी क्या है, मैं इसको हेल्प करता हूँ. मैं आईटी का एक्सपर्ट हूँ, मुझे आईटी समझ में आती है, इन लोगों को नहीं समझ में आती तो मैं इन्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ. द मोमेंट आई चेंज माई थॉट प्रोसेस गाइस, ठीक है ना, 2010 ऑनवर्ड्स आई थिंक आई स्टार्टेड चेंजिंग माई थॉट प्रोसेस. मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पैसा नहीं कमाएंगे तो नहीं कमाएंगे, और भी बिजनेस है ही हमारे पास. तो फिर मैंने जैसे ही चेंज किया इंस्टेंटली कंपनी वहां से ग्रो होनी शुरू हो गई. क्योंकि इसमें क्या जो कंसेप्ट मैंने देखा जो चलता है वो यही है कि यूनिवर्स में जो आप दोगे ना वही वापस मिलेगा. और जो मैनिफेस्टेशन वगैरह के भी जो कॉन्सेप्ट हैं, तो आप ये मानो कि यूनिवर्सल एनर्जी इज लाइक गॉड, ठीक है ना. तो गॉड है, यूनिवर्स की एनर्जी है, वो उसको सपोर्ट करती है जो कि उसका काम करता है, ठीक है ना. अब गॉड उसको सपोर्ट करेंगे, कहते हैं हाँ ये बंदा है, ये सिर्फ अपनी सोचता है, इसको मैं क्यों उस पर फोकस करूं.
ये बंदा है हजारों लोगों की हेल्प करने को तैयार बैठा है, तो इस पे फोकस करूंगा, इसको दूंगा तो 1000 लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि आज अगर आप अपने टीम मेंबर में भी किसी पे फोकस करते हो तो एक आदमी ऐसा है जो कि पूरी टीम का ख्याल रख रहा है, ठीक है, और एक आदमी ऐसा है जिसको कुछ दे दिया तो वो बस उसको चुपचाप खा जाएगा और किसी से शेयर नहीं करेगा। तो आप ऐसे में किस पे फोकस करोगे? तो यूनिवर्स और जो गॉड है वो भी ऐसे ही फोकस करता है। वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि सबको साथ लेके चल रहा है और जैसे कहते हैं ना कि सबका विकास, ठीक है, तो उसके लिए काम कर रहा है, केवल अपने लिए नहीं सोच रहा। तो आई वुड इनकरेज यू हाईली कि अगर आप खुद के लिए भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो यही कंसेप्ट मैं अपनी टीम को कहता हूँ। मैं कहता हूँ पीछे मत हटो, जो कर सकते हैं करके दो। हमारे स्टूडेंट्स को उनकी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना मत बोलो, पहले ट्राई करो, ठीक है ना। हम हर चीज नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उनको अगर हम सक्सेसफुल बनाते हैं, उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, तो हमें सक्सेसफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। तो हमारे को ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे यहाँ ना वैसे कोई बहुत ज्यादा हम टारगेट्स रखते नहीं है कि इतने करोड़ टर्नओवर करनी है, इतना ये करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं कोई टारगेट बनाऊंगा भी तो बहुत छोटा टारगेट होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। भाई अगर अब मैंने 10 करोड़ की टर्नओवर करी है तो मैं बोलूंगा 15 कर लूंगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं ना 15,000 करोड़ करूंगा तो मेरा दिमाग उस चीज को विश्वास ही नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर मैं मुकेश अंबानी को बोलूं कि जी ऐसा है जी मैं तो 15,000 करोड़ कर रहा हूँ, कहेगा क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं यार, हमारा टाइम मत वेस्ट करो आप, ठीक है ना। कोई अगर आपके पास में 15,000 मिलियन डॉलर का या 15 ट्रिलियन डॉलर का कुछ है तो बताओ, राइट। क्यों? क्योंकि वो आदमी तो वो भी आदमी है, राइट, लेकिन हमने खुद अपने लिए मेंटल ब्लॉक बनाया हुआ है। तो मैं कहता हूँ गोल्स और अचीवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अंदर में सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, देने की सोचिए, औरों को सक्सेसफुल बनाइए, अपने कस्टमर्स को सक्सेसफुल बनाइए, अपने टीम मेंबर्स को सक्सेसफुल बनाइए, ठीक है ना। और अपने आप सही लोगों को, सही सर्कमस्टेंसेस को, सही तरह की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे, ओके, यू विल अट्रैक्ट द राइट people, right opportunities, because then the entire universe is working with you, right? The entire universe will work with you if you are working for the universe. आप बात समझ गए? ट्रू, ठीक है ना। मैंने इस चीज के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से एक पूरा सेशन किया, दैट टेक फ्राइडे का एक पूरा सेशन मैंने इस चीज पे भी किया, और मैंने इस चीज के ऊपर जो है एक पूरी एक सेशन, बड़ा अमेजिंग सेशन रखा था। अगर आप में से कोई देखना चाहे तो आई विल शेयर इट विद यू गाइस। तो ये टेक फ्राइडे का जो लिंक है इसके अंदर ही दिया हुआ है, ये जो पास्ट एपिसोड्स हैं इसके अंदर में मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने एक बड़ा अच्छा सेशन किया था। डॉक्टर वेन डायर की एक मूवी है द शिफ्ट, ओके। तो वो कहते हैं कि फ्रॉम एम्बिशन टू मीनिंग। तो जैसे ये देख रहे हैं, ये हाउ शुड आई सेट गोल्स फॉर माई कंपनी, तो दिस आई डिड। पूरा मूवी दिखा के मैंने ये सेशन किया था कि मूवी का एक वो पूरा मूवी का सहारा लेके हमने ये सेशन किया था। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इफ यू हैवंट सीन इट यू मस्ट सी दिस। ये मैंने चैट में आपको लिंक दे दिया है, ठीक है ना। तो ये जरूर इसको देखिएगा। एंड अगेन देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए मेरे को ना कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे मैं टेक फ्राइडे भी बनाता हूँ ना, तो चीजें अपने आप आती है मेरे पास। आप मानेंगे नहीं कि मेरे को खुद कई बार सरप्राइज होता है कि अच्छा कहाँ से क्या चीज कैसे रिलेट हो जाती है। तो वो मुझे मतलब कुछ करना नहीं पड़ता, ओके। तो जैसे इस मूवी में भी अगर आपने बोलेंगे ना, तो डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि यूनिवर्स डज नथिंग, यानी यूनिवर्स या गॉड, दे नेवर डू एनीथिंग बट दे नेवर लीव एनीथिंग अनडन, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कोई चीज करते भी नहीं है बट कोई चीज अधूरी भी नहीं छूटती। तो मुझे भी ना अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसी लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पढ़ाना है, वो अपने आप ही इंस्पिरेशन आती है, और कब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, राइट। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? डिड यू फाइंड दिस एक्सरसाइज यूजफुल? जो मैंने आपको ये आज की एक्सरसाइज कराई आपको कैसी लगी गाइस? सो लेट मी हैव सम ऑफ योर कमेंट्स एंड सजेशंस। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। Awesome, sir. थैंक यू सर, अमेजिंग सेशन, इट वाज वैल्यू एडिंग। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो अब मच। यही चीज को अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है, सो हाँ डोंट वरी। अच्छा, टेंशन भी लेने की कोई जरूरत नहीं है
हर एक चीज जैसे आती है ना, आपकी नॉलेज में आ गई है, तो Right. वो अपने आप इम्प्लीमेंट भी हो जाती है। तो कई बार ना हम लोग टेंशन लेना रहे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, चिंता मत करो, आराम आराम से अगर आपको चाहिए है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो कई चीजें ऐसी होती हैं, अभी वर्ण हार्नेस से मैं मिला था 10-12 साल पहले, ठीक है ना। अब ये कंसेप्ट अपने आप याद आया मुझे, मैंने कहा हाँ यार उनका बड़ा अच्छा वो था, मैंने कहा चलो इसे रिवाइज करते हैं। फिर मैंने कहा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्यों ना, तो कहते हैं सिखाने का बेस्ट तरीका क्या है, यानी सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, तो सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, सिखाना शुरू कर दो। दिखाना। तो मेरे को ना जो चीज सीखनी होती है ना, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। उस चक्कर में मैं भी सीख लेता हूँ, सो वेरी इजी। और ये टूल जो मैंने बताया मीरो, ये भी यूज करिएगा। तो दिस इज अमेजिंग अमेजिंग टूल जो मीरो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखना कि अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, एंड इट इज नॉट इजी टू रीच आउट टू पीपल। तो बट इन केस इफ यू नो सम एसोसिएशंस, और जैसे आपके कई बार होता है ना कि कोई पेपर मर्चेंट की एसोसिएशन थी, ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन थी, तो उसके अंदर ना फिर मैं अपनी टॉक दे देता हूँ, वो लोग भी स्पीकर ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे जरूर बताना अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई एसोसिएशन को आप जानते हो, तो फिर एटलीस्ट उसके अंदर फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ पाऊंगा, इन सारी चीज़ों से जोड़ पाऊंगा। ओके, डू कीप दैट इन माइंड। सो ग्रेट। अब इसको जो भरा है इसको संभाल के रख लीजिए, और इसको ना आप रिव्यू कर लीजिए, अपनी प्लानिंग में रिव्यू कर लीजिए, ठीक है ना। इसको इस पे एक्शन जो आपका वीकली प्लान है उसमें कहीं ना कहीं डाल लीजिए, सो दैट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। तो इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। इसके अंदर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि एक आईडी दे रहा हूँ आप लोगों को, एक ईमेल पर एक आईडी डाल रहा हूँ, तो एवरी इस पे अगर इसको मेल कर दें आप, जो आपने शीट बनाई है अटैच करके मेल कर दें इस आईडी पे, तो ये हर हफ्ते आपको आ जाएगी। तो आपको ये रिमाइंडर मिलता रहेगा कि हाँ मैंने एक्सरसाइज करी थी, राइट। तो ये एक आईडी है every1week@fut.io, तो ये खुद ब खुद आपको रिमाइंडर देती रहेगी। तो कोई भी चीज़ का आपको रिमाइंडर चाहिए ना, जैसे आप every 1 month करना है, every 1 week करना है, तो ये fut.io वेबसाइट भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक ईमेल रिमाइंडर सिस्टम है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरी तरफ से एक और टिप आप समझ लीजिए आज के लिए, और ये जस्ट लाइक ईमेल एड्रेस। तो कोई भी रिमाइंडर चाहिए तो एक ईमेल कर दीजिए, जैसे आपको कल रिमाइंडर चाहिए तो लिख दीजिए tomorrow@fut.io, या लिख दीजिए मंडे MON 9 PM, तो 9 बजे आ जाएगा। आपको ट्यूसडे को चाहिए, आपको 12 दिसंबर को चाहिए, 12 दिसंबर 10 AM, तो भी आ जाएगा। तो वेरी वेरी इजी टू यूज। हेलो संजीव सर। हाँ जी आज का जो एक्सरसाइज था, एक तो जिसने मतलब जो ड्रीम्स थे तो भले ही रियलिटी में नहीं, लेकिन माइंड में एक स्टेप क्लोजर पहुंचा दिया। तो और दूसरी चीज सर, वही 5 जुलाई को एक BNI का आप लोग मीट शेड्यूल कर रहे हैं। तो अभी मैंने अपने MD को उसका मेल दिया है, और थोड़ा डिटेल और बोला, वीडियो शो किए यूट्यूब के भी, लेकिन वो चाहते थे कि शॉर्ट में कुछ उनको मिल जाए कि क्या है एग्जैक्ट वो उनको ना यहाँ आकर ही समझ में आएगा। वो मैंने बोला, लेकिन सर वो बोलते थे कि मतलब जैसे उनको कहीं ये नहीं लग रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइप से वैसा ना हो, नहीं बिजनेस लेवल्स का। नहीं। जी जी, मैंने उनसे वो आपको, हाँ आपको पता ही है मैक्सिमम कि पॉसिबिलिटी कि वो हाँ, जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा एक थोड़ा सा और रीजन दीजिए कि मैं उनको और थोड़ा कन्विंस कर आके दूं कि ही पहुंचे। सतबीर, वो आके ही समझ में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको पता है कि मेरा कोई इस तरह की हाँ नहीं, मैं चीज, समझ गया, लेकिन मतलब थोड़ा सा असल में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोग को BNI का, तो कुछ होता है मन में डाउट। वो तो मैंने बोली आप जाइए, कम से कम कुछ रेफरेंस मिलेंगे, तो आप बिल्कुल। जाइए कम से कम, बिल्कुल। तो तो बीएनआई देखते हैं। बीएनआई का मैंने इनवाइट डाला था। अगर जी मेरा जी ट्यूसडे को एक्चुअली बिल्कुल। में हमारा शेरेटन होटल में मीटिंग है 7:30, अगर कोई आना चाहे तो मुझे बता दें, मैं इनवाइट डाल दूंगा। तो ये एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं बिजनेस जनरेट करने के लिए, रेफरल्स पास करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बड़े IT प्रोजेक्ट करते हैं, अब सपोज कोई आदमी जो है वो कंस्ट्रक्शन करता है, तो वो भी मिलता है जाके लोगों से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, तो वो मैं कनेक्ट कर देता है कि ये IOCL जो है अपना नया ऑफिस बना रहा है, आप जाके IT के लिए बात कर लो। या हम किसी के लिए IT का काम करें, जैसे अभी एक आदमी है जो पंप्स का काम करता है, तो मैंने उससे मिलवा दिया, कहते मेरे को GMR में मिलना है। मैंने कहा हाँ, GMR में तो हम रोज आते जाते हैं, एयरपोर्ट का रोज काम करते हैं। मैंने कहा मैं मिलवा देता हूँ, मैंने मिलवा दिया। वरना अदरवाइज नए कस्टमर्स को मिलना, बात करना। और इसका जो सिस्टम है BNI का, इसमें 8,000 से ज्यादा चैप्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको कि कोई
चलाता नहीं है। उन्होंने इतना जबरदस्त ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, तो 2-2.5 घंटे की मीटिंग में पूरा BNI चलता है। तो हफ्ते में 1 मीटिंग होती है, 1 मीटिंग फिजिकल होती है, 3 मीटिंग ऑनलाइन होती हैं पूरे महीने में। और इनका सिस्टम देखने वाला है कि ये 8,000-9,000 चैप्टर पूरी दुनिया में चल रहे हैं और उसको मैनेज करने वाला कोई नहीं है, सब ऑटोमेटेड है। तो इनका पूरा सिस्टम एक कंपनी की तरह से आप समझिए कि आपकी कंपनी में आप पूरी तरह जुटे रहते हैं, और यहाँ पे एक ऐसी कंपनी चल रही है जिसकी 9,000 ब्रांचेज हैं, जिसको मैनेज करने वाला कोई नहीं है, राइट? सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ मैनेज। तो अगर BNI नहीं गए आप, तो BNI जरूर देखना बनता है। तो बहुत सर, एक और सर, जैसे अभी इनका जो फर्स्ट मीटिंग का 1200 का समथिंग चार्ज है, वो तो ओके है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इसके बाद में कुछ होगा तो पूरा मेंबरशिप का अलग कुछ है इसमें, या फिर कैसा है मेंबरशिप के वो मीटिंग में? बहुत ज्यादा नहीं होते, आई थिंक 40-50 हजार होते हैं, वो भी बहुत 40-50 के आसपास उनके आसपास होंगे। हाँ, वो कैसे बहुत ज्यादा नहीं है, बट लेकिन वो चार्जेस तो कुछ इसकी मीनिंगलेस हैं BNI के, क्योंकि वो तो खैर बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और ये सर, ये MD के लेवल का है या MD जैसे ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए, सिर्फ MD को, MD के लेवल के लिए? वो घुसने नहीं देंगे। ठीक सर, हम लोग दोबारा कन्विंस करेंगे उनको, बिल्कुल। MD के अलावा किसी को घुसने ही नहीं देते, चक्कर ही खत्म है। MD के अलावा कोई और एंटर ही नहीं। ओके सर, थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए जी। ठीक सर, DMA नहीं हो पाएगा। ठीक सर, ओके सर। Okay guys, thank you so much for attending. Have a great week. I look forward to seeing you again shortly. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. और अगले हफ्ते टेक अलुमनाई सैटरडे, ठीक है? Thank you. Okay guys.